नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। जो लोग जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहते हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग देश के दुश्मन हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। जी हां, अनुच्छेद 370 की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा है कि धारा 370 हटाना केंद्र सरकार का सही फैसला था। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और यहां भारत का ही संविधान चलेगा, इस तरह की स्टेटमेंट कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने कहा है कि 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसे लागू किया गया था। अब कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने फैसला लिया था धारा 370 हटाने का, वो फैसला बिल्कुल सही था। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे हिंदुस्तान को कोर्ट की जजमेंट का इंतजार था। कोर्ट ने कहा है कि 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से। और सबसे बड़ी खबर ये आज की है जिसे आप इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर देख रहे हैं। साल 2019 में भारत सरकार ने संसद में कानून बनाकर अनुच्छेद 370 को कश्मीर से खत्म कर दिया था। इसके बाद अदालत में धारा 370 को बहाल करने के लिए याचिका डाली गई थी। 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने आज इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और इसे हटाना केंद्र सरकार का फैसला गलत नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि इस फैसले से कुछ लोगों को तकलीफ हो। राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है, ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है अपनी स्टेटमेंट में। तो ये तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। कोर्ट की ये स्टेटमेंट सुनिए। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. There will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable, and they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action, and therefore there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept this gracefully. Thank you. Sir, there are many leaders, sir, who is saying that we are under house arrest, sir. How do you? My dear boy, I am in my own house now. I have no idea what's happening. I cannot comment on that. भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ये जो फैसला आया है, इससे पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई और पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी। आपको याद होगा कि वर्ष 2019 में भाजपा सरकार यानी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। एक विशेष कानून के जरिए संसद में कानून बनाया गया था, उसे पास किया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति के पास इसे सहमति के लिए भेजा गया था, जिसके बाद धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया था। और इस फैसले को भारत सरकार की या फिर मोदी सरकार की कहें, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी लोग थे जो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं थे, वो सीधा पहुंच गए अदालत में और 4 साल तक अदालत में सुनवाई चलती रही। आज 5 जजों की टीम ने कहा है कि ये जो फैसला केंद्र सरकार तक का था 2019 का, ये बिल्कुल सही था, ये गलत नहीं था। तो जो लोग सपने देख रहे थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने का, उन्हें आज अपने सपनों का चैप्टर यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है। अब ये धारा सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में नजर आएगी। इसकी जो व्यवस्थाएं थी वो इतिहास के पन्नों में नजर आएंगी, स्कूलों की किताबों में नजर आएंगी और पुराने अखबारों में नजर आएंगी। तो आज ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला है और हर हिंदुस्तानी के लिए आज ये फक्र की बात है कि जो जम्मू कश्मीर, जिसे एक बहुत ही खूबसूरत घाटी कहा जाता है, लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, जिसे भारत देश का दिल कहा जाता है, वो आज भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग तो पहले से ही था, लेकिन उस पर विवाद था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस विवाद को भी खत्म कर दिया। अब ये भारत का एक अटूट हिस्सा है, जिसमें भारत का संविधान चलेगा, भारत का लोकतंत्र चलेगा और भारत की ही सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको ये बहुत बड़ी खबर दिखा रहा है। हो सकता है कि हमारी ये खबर कुछ विशेष धर्म के लोगों को या फिर कुछ विशेष लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सत्य यही है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था। और ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं कि अब अगला नंबर POK का है, क्योंकि संसद में कई बार गृह मंत्री ने इसका जिक्र किया है और अपनी स्टेटमेंट में गृह मंत्री ने कहा है कि POK भारत का हिस्सा है और उसे पाकिस्तान से लेकर रहेंगे। तो हो सकता है कि अगला निशाना भारत सरकार का POK हो। तो इस चीज़ का हमें भी फिक्र है, आपको भी बहुत ज़्यादा इसकी आज खुशी होनी चाहिए। और आज अभी ये कुछ देर पहले ही फैसला आया है और बहुत सारे लोग पूरे देश में इसका जश्न भी मनाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।